everyone, this is Priya Vashni and I welcome you all to the new session. In this video, we are going to talk about the various instructions which Machiavelli has given on the human nature. In the previous video, we had seen the thoughts of Machiavelli or the instructions of Machiavelli, which he is actually giving to the prince or to the enterprising person whoever wants to become a king or a prince. So, basis the on the politics as a profession, right? But in this video, we will cover the instructions which Machiavelli is giving to the prince on the human nature, right? Now, first question which arises is that why Machiavelli is talking about human nature, right? Even why Machiavelli is talking about human nature, why it is important for a prince to understand the human nature. So, my friends, if you remember that in one of our previous video, we had talked about the methodology of Machiavelli, right? So, while Plato's methodology was that the prince or the king or his philosopher king should have the knowledge of philosophy, Machiavelli says that it is not required for the prince to have the knowledge of philosophy, but what is actually required for the prince is to have the knowledge of history, right? Knowledge of history and the knowledge of human psychology. Of human psychology, right? So, since the understanding the human psychology was the part of the Machiavelli's methodology, hence it becomes very relevant for us to read about his instructions on the human nature, on the human psychology. Now, point arises that why Machiavelli is asking or is expecting the prince to understand the human psychology, because ultimately the prince has to deal with the humans, right? Ultimately the prince has to deal with the humans. So basically the people whom he is ruling over, for example, the or you can say the citizens are also humans. Even the persons who are actually, you can say, his enemies, right? His enemies are also humans. So, in order to be a successful prince or king, it is very, very important for you to understand the human psychology. Then only the prince will be able to think one step ahead of others. Because since it is really, really important for the prince to think so to think deeper and to think a lot steps ahead of other or of the enemies, only then he will be able to protect his nation and the state and the persons, right? So therefore Machiavelli says that since it is very important for the prince to understand the human nature, hence Machiavelli is giving various instructions to the prince about the human nature, right? So in this video we will actually understand or read that what Machiavelli is talking, or as per Machiavelli what human nature is all comprised of, right? Okay, but before that as well, you need to understand that what is the basis of Machiavelli's views on of human nature, or in more simple terms we can say that how Machiavelli is deriving the various attributes which he is talking, or which he is saying that okay, humans are like this, humans are like that. So basically on what basis Machiavelli is deriving those attributes. So basically, as I have even said just a few moments uh, uh, ago, that for Machiavelli, it is very, very important for the prince to understand two things: the knowledge of human psychology and the knowledge of history. So, the basis
of Machiavelli's views on human nature is nothing but the history only, right? So Machiavelli says that history is the best guide to the politics, best guide to the politics. He says that on the basis of observations from time to time, we can derive various things. For example, in Machiavelli's case, on the basis of observations from his time, he and as he found in history, he gives the views on human nature. So, according to Machiavelli, human history, throughout the human history, human nature has remained constant. ठीक है? And the and see, one thing which you should remember is that whatever Machiavelli is saying is his own views, right? So, we all know that Machiavelli is being criticized for giving a very pessimistic view about various things, right? Similarly, his views on human nature are also pessimistic, but again, we cannot deny or we cannot say that his views are entirely incorrect. So, we will understand that what exactly he is talking about the human nature. So, according to Machiavelli, man is selfish, man is ungrateful, man is deceitful, or you can say dishonest, man is coward, man is fearful, man is avaricious. Avaricious means extremely greedy. Now, you will say that Machiavelli has only seen bad things about the human nature, right? But as we have also discussed in the previous video that good things तो इंसान में है ही है, but for the prince, in order to remain in power and in order to be a successful prince, it is very important for the prince to understand even the dark sides, right? Therefore, and that's why only Machiavelli is known as the realist, because he says or he asks us to remove all the filters when we look at the things, right? So one by one we will understand that why man is selfish, why man is dishonest, why man is coward, why man is fearful. See, basically what Machiavelli has done in his book is he has said that man is selfish, then he has actually instructed prince, or you can say कि उसने प्रिंस को ये समझाया है कि इस क्वालिटी की होने से प्रिंस को फायदा है या नुकसान है. फॉर एग्जाम्पल इफ मैन इज सेल्फिश तो प्रिंस को इस चीज से मे बी नुकसान हो सकता है एंड उसको फिर कैसे रिएक्ट करना चाहिए. Similarly, if man is ungrateful, then what implications it could have on the prince. If man is fearful, then is this something of which prince can gain something from it, right? So this is how basically Machiavelli has said. What we are going to see is, अब हमने ये तो देख लिया, Machiavelli has said that this is something which he has derived from the human history. तो कह रहा है ये ऐसा है. It's not like that he is saying कि आप हिस्ट्री उठा के देखिए और आपको ऐसा ही मिलेगा. मैकेवेली का ये कहना है, ठीक है? तो मैकेवेली ने ये तो बोल दिया कि मैन ऐसा है, बट उस कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरियस एट्रीब्यूट्स उन्होंने मैन के लिए बोले, ह्यूमन नेचर के लिए बोले, राइट? बाय मैन आई एम बेसिकली रेफरिंग टू द ह्यूमन नेचर. सो जो कुछ भी मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर के लिए बोला, दैट इज समथिंग. फिर उसके ऊपर मैकियावेली इज बिल्डिंग हिज थ्योरीज. उसके ऊपर मैकियावेली इज सेइंग दैट दिस इज समथिंग जो कि प्रिंस के लिए अच्छा है, दिस इज समथिंग विच इज बैड फॉर द प्रिंस, एंड दिस इज हाउ prince can deal with these scenarios. Is it clear to you? Okay, so one by one let us see these scenarios. First of all, as the Machiavelli says that prince is selfish by nature. Selfish तो आपको सभी को पता है क्या मतलब होता है. Selfish means अपने बारे में सोचने वाला इंसान, उसको सिर्फ अपनी बड़ी है, and he is like कि he actually considers his interest only. ठीक है? तो what Machiavelli says is that man is selfish by nature. अब
what does it mean? It means that he always gives primacy to his own interest, right? This is what selfish word itself implies. ठीक है, own interest. So basically what he's saying is that since man is selfish by nature, ultimately he is ungrateful as well. बिकॉज ग्रेटफुल कौन होता है? जो ग्रेटफुल होगा वो कभी सेल्फिश नहीं होगा, राइट? बिकॉज इफ सपोज दिस पर्सन, लेट्स से दिस पर्सन इज अ काइंड पर्सन, और यहाँ पे ये एक सेकंड पर्सन है, अगर इस पर्सन ने इसकी हेल्प की, ठीक है, इसने इसकी हेल्प की, एंड इन अनदर सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज इस बंदे को इसकी हेल्प की जरूरत है, बट व्हाट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर ये बंदा इसकी हेल्प करता है तो इस बंदे के लिए मे बी वो हार्म कर जाए, या वो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि इसको मॉनेटरीली हेल्प की जरूरत पड़ी, बट इसको भी कुछ और अर्जेंट काम आ गया, तो वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैकियावेली कि ये जो है ना, ये अपने इंटरेस्ट को देखेगा सबसे पहले, अगर वो जिस हिसाब से नेचर को बता रहा है कि भाई पहले मेरा काम होना चाहिए तब किसी दूसरे की मैं हेल्प करूंगा। तो अल्टीमेटली अगर ये इसके लिए इसको ट्रूली ग्रेटफुल होता तो क्या वो ऐसा करता? नहीं, उसको ये होता कि नहीं, इस बंदे ने मेरी हेल्प की थी एट द टाइम व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, देयरफॉर आई शुड आल्सो हेल्प हिम एट दिस टाइम, मेरा काम थोड़ा टाइम बाद भी हो जाएगा, राइट? सो according to Machiavelli, since man is selfish by nature, he is also ungrateful, राइट? ही इज ऑल्सो अनग्रेटफुल बाय नेचर। तो वो क्या कहना चाह रहा है प्रिंस को कि क्योंकि वो उस एक मैन बाय नेचर सेल्फिश और अनग्रेटफुल है, देयरफॉर जो प्रिंस जो ह्यूमन है, जो भी बंदा है, वो क्या करेगा? वो हमेशा अपना स्वार्थ देखेगा, एंड जो कुछ भी आप उसके लिए करोगे, यानी जो कुछ भी प्रिंस उसके लिए किया करेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब सिचुएशन आएगी या कोई टाइम आएगा जिसमें अगर मान लो उसका इंटरेस्ट हार्म हो रहा होगा, तो वो अल्टीमेटली अपनी अपने इंटरेस्ट को ही चुनेगा। वो ये नहीं कहेगा कि प्रिंस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है इसीलिए मेरे को भी उसके लिए करना चाहिए, राइट? तो वो ये बोलना चाह रहा है कि सेकेंडली इसी के थ्रू वो ये भी स्टैब्लिश करते हैं मैकियावेली कि मैन इज ऑल्सो फिकल माइंडेड। वो कहते हैं फिकल माइंडेड है, मतलब लुढ़कना लोटा टाइप का, कि कभी इधर कभी उधर, तो यानी कि जैसे ही उसकी आपसे नीड पूरी हुई वो दूसरे साइड चले जाएंगे, ठीक है? तो अब आप ये बोलोगे कि आखिरकार मैकियावेली व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एट्रीब्यूट, इससे वो प्रिंस को बताना क्या चाहते हैं? ठीक है, देखो होता क्या है, जब कोई प्रिंस है, व्हेन व्हेन देयर इज अ किंग और व्हेन देयर इज अ रूलर, जब वो रूल कर रहे होते हैं तो कई लोग होते हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं, राइट? सिमिलरली मान लो कि कोई, ये तो हो गया कि अगर विद इन नेशन बात करूं, और कई बार क्या होता है आपके आउटर नेशंस वाले भी दे एक्चुअली दे सेज दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है? वो फ्रेंड टाइप के लोग जो होते हैं, जो आपको बोलते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इट्स लाइक कि टाइम टू टाइम जो होता है उस अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो अगर आप यहाँ पे इस सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ये दो लोग हैं और ये एक बंदा है, ठीक है? और ये क्या है, हो सकता है एक टाइम पे, क्योंकि ये लोग काफी अच्छे हैं, इनका जो बिहेवियर है इट इज वेरी गुड विद द प्रिंस, तो प्रिंस में डू अ लॉट थिंग्स फॉर हिम, राइट, फॉर देम। तो हो सकता है कि वो काफी कुछ करेंगे, इवन अगर मान लो मैं सिटीजन्स की भी बात करूं तो हो सकता है प्रिंस ने काफी कुछ किया हो सिटीजन्स के लिए, ठीक है? बट वो क्या बोल रहा है, ये जो मैकियावेली इतना कुछ बोल रहे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में लेके कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, तो वो प्रिंस को ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि लोग आपके साथ अच्छे हैं, दे आर बिहेविंग वेरी cool with you, but it is वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली मैन सेल्फिश होता है नेचर से, यानी कि कभी भी ऐसा मौका आ सकता है जब इन लोगों का इंटरेस्ट आपके प्रति लॉयल्टी से ऊपर हो जाए, एंड वो टाइम होगा जब ये लोग आप
के अगेंस्ट जाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे और आपके साथ डिसलॉयल होने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर द प्रिंस टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट टेक द सपोर्ट ऑफ एनी पर्सन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, वो कहते हैं कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि एनी वन कैन बिट्रे यू एनी टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से मैकियावेली स्टैब्लिश कर रहा है पूरी सिचुएशन को? वो पहले उन्होंने बताया कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, फिर उन्होंने बताया सेल्फिश होने की वजह से क्या क्या होगा, मतलब वो ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को प्राइमेसी देंगे। फिर उन्होंने बताया इसकी वजह से वो अनग्रेटफुल भी है, फिकल माइंडेड भी है। मतलब कि अगर मान लो आज तक जब तक उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तब तक वो आपके साइड है, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो या फिर आपने सपोज करो कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तो दे कैन इवन बिट्रे यू। तो वो कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिंस कि वो किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा ना करे, वो हमेशा वेरी वेरी कॉशियस रहे इन सिचुएशंस को लेके। इज इट क्लियर टू यू? ओके। कि नेक्स्ट मैकियावेली बोलते हैं कि मैन इज कॉवर्ड बाय नेचर। कॉवर्ड यानी डरपोक टाइप का। वाई डरपोक? ही सेज दैट मैन इज एक्चुअली इनसिक्योर। Man is actually surrounded by many insecurities. Insecurity related to the life, insecurity related to the occupation, insecurities related to a lot many things. Right? So what Machiavelli is saying is that since man is coward by nature, and this attribute Machiavelli thing is very helpful for the prince. राइट? सी, जब हमने सेल्फिशनेस की बात की थी तो व्हाट वाज हैपनिंग इज दिस एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन नेचर वाज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द प्रिंस, राइट? बिकॉज इस एट्रीब्यूट की वजह से इट कुड हार्म द प्रिंस। But when we talk about, or when we say that man is covered by nature, then this insecurity of the human beings, this insecure nature of the human being is actually helping the prince or can help the prince. Machiavelli, how it can help the prince? तो इस पे मैकियावेली का क्या कहना है? वो कहते हैं कि this attribute prince can take to his own advantage, or prince can take advantage of this attribute. Advantage of this attribute. How? मैकियावेली का कहना है कि देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी आपकी बात कब मानेगा? जब आपके दिमाग, आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट है, राइट? साथ साथ एक और रीजन होता है जब आपकी बात कोई मानेगा, जब आप उनके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज है, अगर आप उन सिक्योरिटीज को दूर कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कोशिश होगी उनकी कि वो आपके प्रति लॉयल रहे। तो यहाँ पे मैकियावेली का क्या कहना है? मैकियावेली कहते हैं कि जो आपका प्रिंस है, ठीक है, जो प्रिंस है वो क्या करना चाहिए? ही शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ द कॉवर्डनेस, और यू कैन से ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ दीज इनसिक्योरिटी। ही सेज कि अगर प्रिंस कन्विंस कर दे, अगर प्रिंस कन्विंस कर दे लोगों को कि मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं हूं जो आपको सिक्योरिटी देंगे, मैं हूं जो आपकी लाइफ को सिक्योर करके रखेगा, मतलब मेरे होते हुए आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे होते हुए कोई आपका सामान चोरी नहीं कर सकता, आई विल पनिश हिम, मेरे रहते हुए आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। अगर प्रिंस, इफ प्रिंस इज एबल टू गिव सच अ सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल, टू द सिटीजन, तो दोज पीपल विल रिमेन ऑब्लाइज्ड टू हिम। ठीक है, तो दिस इज हाउ मैकियावेली इज सेइंग दैट prince can actually take the advantage of this attribute of the human nature, right? Okay.
सेकेंड थर्ड मैकियावेली बेसिकली क्या बोलते हैं कि मैन इज एवरेशियस और एक्सट्रीमली ग्रीडी. ठीक है, ही इज सेइंग दैट मैन इज बेसिकली materialist by nature, right? Man is a materialist by nature, and hence man has a love for property. लव फॉर प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इट्स लाइक कि वो लैंड भी हो सकता है, वो दूसरी प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरियस थिंग्स जो कि उसको काइंड ऑफ प्लेजर दे. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, राइट, दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉपर्टी. बेड, that could also be a property, right? And a good home, that could also be a property. So what Machiavelli is saying is, since man is materialist by nature, he will always try to uh, to uh, attain, or you can say to hold as much materials as he can, right? It's like कि बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है, भले ही उसको यूज ना करे. तो इट्स लाइक कि उसको चाहिए, उसके अंदर एक बहुत इंटेंस डिजायर होती है टू अर्न थिंग्स, राइट, जितनी भी प्लेजर रिलेटेड थिंग्स होती हैं. और ठीक है, तो बेसिकली उसे इंटेंस डिजायर होती है कि प्रॉपर्टी को अटेन करने की, गेन करने की. तो व्हाट मैकियावेली सेज इज, देयरफॉर इट इज द responsibility of the prince to create situations through which man is able to create property or earn property or to make money, right? Through which man is able to make money or earn property, right? सो कहीं ना कहीं यू कैन सेंस इट, लाइक ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन की बात हो रही है. तो एंड इवन एक और चीज जो मैकियावेली बहुत इंटरेस्टिंगली बोलते हैं इज कि first of all he has established that there is an intense love in the people for the property. Then he says that because people love their property that much, it will be it will be a foolish act if prince ever tries to confiscate that property, right? वो कहते हैं कि it is better to kill that person rather than to confiscate the property of that person, because according to the Machiavelli, उस हर इंसान को इतना ज्यादा प्यार होता है अपनी प्रॉपर्टी से कि वो कभी भी उस चीज के लिए आपको माफ नहीं करेगा. एंड हो सकता है कभी भी ये चीज आपके लिए खतरा बन जाए. So Machiavelli says is that it is better to kill that person rather than confiscating the property of that person. अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इवन ही ऑल्सो, बिकॉज उसको भी वो और आगे एक्सप्लेन करते हैं. वो कहते हैं कि मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट ही विल नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमनी. पैट्रिमनी मीन्स उसके पिता की जो संपत्ति है. मतलब एक बार को वो अपने, अगर उसने अपने पिता को खोया वो भूल सकता है, बट अगर उसकी पिता की जो संपत्ति है वो उससे कोई छीन ले, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट? तो इसीलिए वो प्रिंस को बार बार ये एडवाइस करता है कि वो जो पीपल है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिससे कि मैन विल बी एबल टू अर्न द प्रॉपर्टी और टू मेक द मनी. एंड he says that it is better to kill the person rather to confiscate that property. So बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू है मैकियावेली का. बट एक चीज जो सच है वो ये कि लिटरली मैन लव्स देयर प्रॉपर्टी, राइट? उनको किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि उनकी चीजें कोई छीने. बट इट कैन नेवर बी अ आइडिया कि आप उसको जो है जाके मार दो, राइट? But this is how Machiavelli thinks what we can do, right? Okay. Now we have actually discussed it. Now let us just critically evaluate whatever we have talked in this video. See, we all know that हमने अभी भी देखा पूरा कि how Machiavelli has given the pessimistic view of the human nature, because human nature के बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी. फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन नेचर.
एक जो होता है लोगों का, एक टॉलरेंस भी एक ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है, वेयर यू कैन लाइक इफ यू इवन डोंट लाइक अनदर पर्सन तब भी आप उसके प्रति एक अच्छे से बिहेव करते हो, शोइंग रिस्पेक्ट एक्सेट्रा, लॉयल्टी, ये सारी भी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट पुट एवरी ह्यूमन इन वन बास्केट, राइट? हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, बट मैकियावेली हैज सीन ओनली द डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो ये चीज तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो that दिस इज समथिंग जो कि काफी गलत है। बट इवन अगर हम लोग सबाइन की बात करें, सबाइन, राइट, तो जो कि आपके आप बोल सकते हो कि ये ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ मैकियावेली। ही सेज दैट मैकियावेली अगेन he gives such a pessimistic view of human nature because of his own experiences in Italy of his time। तो अगेन आप इनका जो फेमस स्टेटमेंट है दैट मैकियावेलीज आइडियाज वर नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। I have already explained this in my previous video. If you have not seen it, and I'll request you to please go and watch that video to understand what Sabine means by saying this. So, uh, so what Sabine says is that if Machiavelli had belonged to different place and time, then it is a possibility that the thoughts of Machiavelli are not that much pessimistic that we are seeing here. But so, what do you think? What do you think? If I ask you that this is all about basically Sabine, but what do you think? If I ask you that how or what do you think about the thoughts of Machiavelli? Or if the question asks that please critically evaluate the thoughts of Machiavelli on the human nature, then how will you answer it? See, we all know that the thoughts of Machiavelli are one-sided, right? Because he has only seen the dark aspects of the human nature. But when we are talking about a prince or a king, so don't you think it is very important for the prince or king to even know the darker side of the human nature or dark aspects of the human nature, right? Right. So though Machiavelli has given the one sided view of human nature, but we cannot say that his one sided view is entirely wrong, right? It is not entirely wrong. Because अगर मैं शुरू से चलूं, जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि मैन क्या है, सेल्फिश है, अनग्रेटफुल है, फिकल माइंडेड है, एक्सेट्रा, राइट? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरी मैन इज सेल्फिश, बट कहीं ना कहीं दिस इज ट्रू कि एवरी ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू गिव प्राइमेसी टू हिज ओन इंटरेस्ट, बट देयर आर सिचुएशंस जब वो अपने इंटरेस्ट को प्राइमेसी देता है, राइट? सिमिलरली, लेकिन अगर अब आप अपने दिमाग में ना एक किंग को रख के सोचो कि अगर कोई किंग है, सपोज करो कि एक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर उन वो किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनके दिमाग में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि सामने वाला उनको दगा दे सकता है, इसीलिए क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, क्योंकि उनके ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक नेशन लाखों करोड़ों लोगों से मिलके बनता है, एंड जब लोग किसी को अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और इलेक्ट करते हैं बेसिकली एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो वो एक भरोसा दिखाते हैं कि ये बंदा हमें प्रोटेक्ट करेगा, राइट? तो सिमिलरली, इसीलिए जब कोई किंग है या प्रिंस है या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, जब भी वो किसी और कंट्री के लोगों के साथ या किसी के साथ भी डील करते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ना देखे सामने वाले में, अपने दिमाग में एक जगह ये भी रखें कि सिचुएशन आने पे हो सकता है कि ये बंदा भी अपने इंटरेस्ट देखे और शायद हमारे साथ हमें दगा दे दे, राइट? So it is very, very important for the king or prince to have this view as well, alongside whatever positivity he or she is holding in his mind, right? Similarly, अब यहाँ पे
it's not like कि coward, it's not like कि people are insecure, but it is true कि जो भी किंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, राइट। ये एक कोई भी आपका जो भी किंग है या प्रिंस है, जो भी उसके राज्य में लोग रह रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके यहाँ पे रहने वाले लोग खुश हों, संपन्न हों, और खुद को हमेशा सेफ महसूस कर सके। इट्स नॉट लाइक कि वो लोग, उनको ये डर है कि कोई भी आके उनको मार देगा, कोई भी आके उनका सामान लूट के ले जाएगा। अगर वो इस डर के साथ रह रहे हैं तो आप कभी भी एक अच्छे प्रिंस या अच्छे किंग कहलाने लायक नहीं हो, राइट। तो सेकंड, अगर मैं इसकी बात करूं कि आपका मैन इज एवरेशियस और एक्सट्रीमली ग्रीडी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे भी आप एक जो एसेंस निकाल सकते हो वो ये कि ये बात सच है कि प्रिंस को, कोई भी प्रिंस या किंग है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, इकोनॉमिक सिचुएशन यू कैन से, पॉलिटिकल सिचुएशन यू कैन से, कि एक ऐसी सिचुएशन हमेशा आपकी क्रिएट करें जिसमें कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए अपनी जरूरत या फिर अपने आराम का सामान जो है जुटा सके, राइट। सो दिस मैसेज यू कैन गेट फ्रॉम इट। सो व्हाट आई एक्चुअली मीन टू से इज कि ठीक है, मैकियावेली ने काफी वन साइडेड व्यू दिया है ह्यूमन नेचर का, काफी डार्क साइड उन्होंने बात की है ह्यूमन नेचर की, बट वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ठीक है, एक किंग या प्रिंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो कंप्लीट पिक्चर को देखें, ना कि ओनली द पॉजिटिव साइड्स ऑफ अ थिंग, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर क्वेश्चन, इन योर यूपीएससी आंसर, कि आप पूरी तरह से इस तरह से क्रिटिकली एवेल्युएट करके चीजों को दिखा सकते हो। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, जितना भी इजी करके मैं इसको आपको समझा सकती थी। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thanks a lot. Take care. Bye bye.